Welcome, viewers, to Season 2 of the Nation Pod Talk. Here, we feature inspiring personalities from all walks of life, diving into their stories, experiences, and the lessons they've learned along the way. Today, we're thrilled to have with us a young and determined talent from the heart of Indian domestic cricket, Bhupan Lalwani, a promising cricketer representing the iconic Mumbai side. In a city that has produced cricketing legends like Sachin Tendulkar, Sunil Gavaskar, and Rohit Sharma, carving out a name for yourself is no small feat. Bhupan has done just that, through sheer hard work, patience, and standout performances at the domestic level. He's been a part of Mumbai's Ranji Trophy winning squad, sharing the dressing room with seasoned internationals like Ajinkya Rahane, and learning what it truly means to compete at the highest level in India's competitive domestic structure. So, whether you're a cricket fan, an aspiring athlete, or someone who loves stories of grit and growth, this episode has something for you. Hosting this episode is our host Priyanksha Kumar. Welcome to another exciting episode of the C Nation podcast. Today we are joined by a rising star from the cricketing circuit, Bhupan Lalwani, a talented cricketer from Mumbai who has made waves with his consistent performances and passion for the game. Get ready to dive into his journey, the grind of domestic cricket, and what it takes to rise through the ranks in Indian cricket. Hello Bhupan, how are you doing today? Hi, I'm doing good. How are you? Okay, so शुरू से स्टार्ट करते हैं. इट्स लाइक कि इस क्रिकेटिंग जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? आपने मुंबई में क्रिकेट खेलना शुरू कैसे किया? एक सिटी जिसने बहुत ज्यादा रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं. So basically, I started my cricketing journey at the age of 8 when I was 8 years old. And like my dad took me to a nearby ground, which was Mahul, Venksatta Cricket Academy. So I started playing over there, and slowly, I started going to selections of under 10, under 12 in MIG, in SPG, and from the age of 10 to the age of 20, I was in Sanjeevani Cricket Academy, from where I got to learn about techniques, basics, everything. So 10 years I trained over there in Sanjeevani Cricket Academy. Interesting. So it all started from going to the ground and then eventually having that momentum. Moving forward, was there a specific moment or a person who inspired you to take cricket seriously? Yeah, it was my dad only. Until now, he is the only one, because he is like my pillar. He's like my coach. He's like my everything basically. Because of him only, I started playing cricket. So basically you are from Mumbai and you started playing for Mumbai. मुंबई का जो क्रिकेट का सर्किट है वो बहुत बड़ा है. इट्स लाइक कि सुनने में आता है इंडिया में मुंबई से अगर आप हो या फिर मुंबई के इर्द गिर्द आप क्रिकेट खेल तो यू गेट अ लॉट ऑफ प्लेयर्स जो खेलना चाहते हैं. बहुत सारे लेजेंड्स भी है. हाउ डिड इट शेप यू फॉर प्लेइंग क्रिकेट एंड मूविंग फॉरवर्ड इन योर करियर? So of course, playing from Mumbai is a very big thing. ऐसा बोलते हैं कि मुंबई से खेलना मतलब 6 स्टेट के बराबर होता है. Because इतना इधर टैलेंट है, इतना इधर कंपटीशन है कि you cannot, आप बैठ नहीं सकते शांति से. आपको कोई हर एक क्लब मैच में भी परफॉर्म करना है, आपको छोटे से छोटा फ्रेंडली गेम में भी परफॉर्म करना है, तब जाके आपका आगे चांस बनेगा मुंबई के लिए खेलने के लिए. So definitely playing itself from Mumbai is a very big thing, and I was very very happy to play for Mumbai. And मुंबई के लिए खेलते हुए you were recently part of Ranji Trophy winning squad. How did it feel lifting the trophy with Mumbai? Yeah, so it was a dream come true. So like 5-6 years back when I made my debut, that time I was like, yeah, one day I'll lift the Ranji Trophy, because it's like winning the World Cup. कोई World Cup से कम वाली feeling नहीं है Ranji Trophy जीतना. So yes, and World Cup जीतना या Ranji Trophy जीतना, and especially at Wankhede again, and playing all the matches, and वो एक dream come true moment था मेरे लिए. किसी भी टूर्नामेंट को एज ए क्रिकेटर आप उस हर टूर्नामेंट को जीतना चाहते हैं, एंड रणजी ट्रॉफी जीतना इज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर एवरीवन. लेकिन इस टूर्नामेंट के दौरान लाइक आपका बेस्ट मेमोरेबल मोमेंट क्या था इस रणजी सीजन के दौरान? तो हमारा एक रायपुर में मैच था छत्तीसगढ़ के अगेंस्ट. उसमें मैंने एक पहले इनिंग में 100 एंड सेकेंड इनिंग में 50 बनाया था.
तो वो मेरा फर्स्ट 100 था रणजी ट्रॉफी में, तो वो मेरे लिए मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट था। व्हेन जब मैं 99 पे था और वो एक रन लेकर जब मैंने 100 किया था, तो रणजी ट्रॉफी में फर्स्ट 100 हमेशा स्पेशल होता है। एंड बीच में ऐसे एक टाइम आया था कि जब मैंने 4 इनिंग में 4 हाफ सेंचुरीज किया था, तो वो अपने आप में एक रिकॉर्ड जैसा भी था करंट ईयर का। तो वो मेरे लिए एकदम मेमोरेबल मोमेंट था। ठीक है, लेकिन डोमेस्टिक मैचेस आप खेलते हो, लेकिन आप एक लेवल पे पहुंच गए, आप रणजी मुकाबले खेल रहे हो, सामने भी क्रिकेट पे अब कम स्टार्स हैं, कुछ कुछ अनुभवी प्लेयर्स भी खेलते हो नजर आते हैं, तो हाउ डू यू पर्सनली प्रिपेयर फॉर अ हाई प्रेशर डोमेस्टिक मैच? तो एज आई सेड, बीइंग फ्रॉम मुंबई इटसेल्फ इज दिस थिंग, क्योंकि प्रेशर की अगर बात करें तो मुंबई में जो टूर्नामेंट होता है, टाइम शील्ड, कांगा लीग, ये सब हम लोग को उस प्रेशर सिचुएशंस में खेलना सिखाते हैं। लाइक एग्जाम्पल आपका आप एक गीले विकेट पे खेल रहे हो, या कांगा लीग का मैच है जिसमें सिचुएशंस बहुत टफ है, उसमें प्रेशर है, इतने को टीम को ए डिवीजन में रखना है, और वो मोमेंटम कैरी करना है, और वो गीले विकेट पे कैसे खेलना है, ये सब जो प्रेशर होते हैं वही सेम चीज हम लोग को कैरी फॉरवर्ड होते हैं डोमेस्टिक मैच में। तो बिकॉज ऑफ द टफ कंडीशंस इन मुंबई, खड़ूस क्रिकेट जो बोलते हैं मुंबई से, वो चीज हम लोग को बहुत इजीली प्रेशर मैनेज करने में हेल्प करती है, स्पेशली इन डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स। इसके लिए आप देखोगे अंडर 23, अंडर 19 रणजी ट्रॉफी सब में मुंबई हर साल क्वालिफाई करती है। इंटरेस्टिंगली, और शायद ये आप उसी लीग की बात करें जो बारिश में खेली जाती है, बहुत मुश्किल पिचेस होती हैं। आई हैव नेवर बीन लाइक आई हैव नेवर सीन दैट क्रिकेट, बट मैंने सुना है कि वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी होता है, एंड इट इज वेरी मच टफ फॉर द बैट्समैन आई गेस। या बिकॉज उसमें बॉल पिच होके कहीं भी जाता है, सबको पता है, कोई बॉल नीचे रहता है, कोई बॉल एक्स्ट्रा बाउंस कर जाता है। बॉलर्स का एक्चुअली वो क्रिकेट होता है, बैट्समैन का उसमें ज्यादा रोल नहीं होता है, क्योंकि टीम हार्डली 100 120 बनाती है, तो विनिंग टोटल हो जाता है। इन अ 2020 मैच, उसमें और मैं लास्ट नहीं, 20 ओवर्स मैच और टेस्ट मैच? नो, इट्स अ 1 डे का टेस्ट मैच, मतलब 6 or 7 आवर्स का गेम होता है। उसमें एक टीम 3 से 4 घंटा खेल के डिक्लेयर करना देखती है, फटाफट 150 रन मारना, एंड सामने वाली टीम को ऑल आउट करना देखती है उसमें। तो इट्स लाइक या इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर्मेट एक्चुअली, एंड मैं लास्ट 2 साल से उसमें हाईएस्ट रन गेटर चल रहा था, तो मेरे लिए वो टूर्नामेंट बहुत अच्छा है। सबसे मुश्किल पिच, लेकिन 70 रन आप टीक, एंड दैट शोज कि आप क्यों मुंबई के लिए खेल रहे हैं। रनों की बरसात हो रही है, बट इट्स फील ग्रेट टू हियर दैट। बट आगे बढ़ता हूँ मैं, लाइक रहाणे के साथ आपने खेला है, अजिंक्य रहाणे एक लेजेंडरी इंडियन बैट्समैन, कैप्टन भी रह चुके हैं टेस्ट साइड के कुछ समय के लिए, और मुंबई के कप्तान भी रहे हैं। सो रहाणे या फिर बाकी जो सीनियर प्लेयर होते हैं, कुछ एडवाइस इनसाइट जो शेयर कराओ आपको, जो आपको अभी भी याद हो, या फिर जिससे आप अभी तक टिके हुए हो। हाँ, मेरा लास्ट ईयर का रणजी ट्रॉफी सीजन अच्छा जाने के पीछे रीजन सिर्फ अजिंक्य रहाणे की कुछ एडवाइसेस थी। बिकॉज उन्होंने जो मुझे एडवाइस दी थी, कुछ लाइक एक मैच था केरला में, थोड़ा रेनी कंडीशन में, जहाँ पे हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे, हमारी विकेट्स चली गई थी, मतलब 2-3 ओवर में कुछ 3-4 विकेट्स चली गई थी। उस समय अजिंक्य रहाणे जी आए थे बैटिंग को, एंड ही टोल्ड मी ओनली वन थिंग कि भूपेन, जस्ट ट्राई टू प्ले स्ट्रेट, एवरी बॉल बस आप सीधा खेलना देखो और कुछ मत करो। वो एडवाइस मैंने पूरा रणजी ट्रॉफी सीजन अप्लाई किया, मुझे वो एडवाइस से बहुत हेल्प मिला। आज भी मैं कहीं अटक जाता हूँ तो मैं सिर्फ वही एडवाइस फॉलो करने का ट्राई करता हूँ। एंड कुछ एडवाइसेस रहती है, जैसे इवन बिफोर द रणजी ट्रॉफी फाइनल्स, अपना सचिन सर आए थे पवेलियन में, एंड उन्होंने भी कुछ एडवाइसेस दी थी रिगार्डिंग द माइंडसेट एंड मेंटल एस्पेक्ट, तो वो भी बहुत काम आई थी। तो इन शॉर्ट, प्लेइंग विद सीनियर्स लाइक अजिंक्य रहाणे एंड मे बी अदर सीनियर्स लाइक शार्दुल ठाकुर, तो उनके छोटे छोटे एडवाइसेस हेल्प करते हैं, बिकॉज दे हैव बीन प्लेइंग इंटरनेशनल फ्रॉम लास्ट 10-15 years, so बहुत फर्क पड़ता है। Does that add pressure to like your performance or something? सो पहले मैच के टाइम पे लगता है थोड़ा सा, व्हेन यू आर प्लेइंग विद द फर्स्ट मैच, लाइक पहला मैच आप खेल रहे हो उनके साथ, तो लगता है कि यू आर प्लेइंग विद द लेजेंड, आपको अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, नहीं तो वो क्या सोचेंगे, कैसे जज करेंगे। बट इवेंचुअली ग्रेजुअली आपको समझ जाता है कि नो, दीज पीपल विल बैक यू, एंड दे विल टेल यू वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग, so they are here to
correct us and to make things learn rather than judging them. तो मेरे को ये चीज़ से बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने मुझे अपना ही समझ के अपना ऐसा मुंबई का खुद का प्लेयर समझ के मुझे बहुत अच्छे से बैक किया, मुझे सब कुछ बताया, तो वेरी थैंकफुल। दैट इज इंटरेस्टिंग कि क्योंकि मुंबई से खेलने का भी एक फायदा भी, आप एक मुश्किल चीज ये भी है कि आपको उस टॉप 15 में टॉप 20 में आने के लिए बहुत संघर्ष करनी पड़ता है, लेकिन आपको जो एक्सपर्ट्स या लेजेंड्स का जो ओपिनियंस मिलता है दैट हेल्प्स यू अ लॉट। बट एज अ क्रिकेटर हर दिन अच्छा नहीं होता है। सो कैन यू वॉक अस थ्रू वन ऑफ द टफेस्ट इनिंग्स यू हैव प्लेड सो फार? व्हाट वाज गोइंग थ्रू योर माइंड? Yeah, it was in the last year under 23 CK Naidu finals. तो गुजरात में मैच हो रहा था, बॉम्बे वर्सेस गुजरात, CK Naidu फाइनल, एंड इट वाज वन ऑफ द मोर डिफिकल्ट पिचेस टू प्ले ऑन, जहाँ पे हम लोग 70 पर 7 थे। तो बॉल मतलब किधर भी मतलब कोई भी एंगल से स्पिन हो रहा था, एंड बहुत नीचे भी बैठ रहा था, एक्स्ट्रा बाउंस भी कर रहा था, एंड स्पिन मतलब बहुत ज़्यादा हो रहा था, और कोई बॉल वहीं से नीचे रह जाता, सीधा रह जा रहा था। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू बैट ऑन दैट विकेट। तो वो विकेट पे मैंने कुछ स्ट्रैटेजीज बनाई, और अपना टेम्परामेंट को एकदम, माइंडसेट को एकदम स्ट्रॉन्ग करके कैसे तो आई मेड 70 रन्स, और अकेले ने मैंने बनाया वो विकेट पे 72 समथिंग, एंड हम लोग वो मैच उन्हें हार गए, बट इट वाज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पिचेस टू बैट ऑन व्हिच आई प्लेड। What was your team's total in एंड that match? so we had to chase something 200 something, and we were 70 for 8, but वहाँ से हम लोग कुछ 200 नियर बाय गए थे। I had scored some 72 runs। तो ऐसे और भी बहुत सारी इनिंग्स रही है। रणजी ट्रॉफी में भी केरला के अगेंस्ट, जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था, जब अजिंक्य रहाणे ने मुझे एडवाइस दी थी, तभी भी हम लोग 50 for 6 थे। वहां से हम लोगों ने 250 बनाया था, मैंने कुछ 88 कुछ बनाया था वो मैच में। वो मैच में भी इट वाज अ रेन अफेक्टेड गेम, तो बॉल स्विंग हो रहा था, सीम हो रहा था, स्पिन हो रहा था। तो या एंड इट्स लाइक कि आजकल ना सोशल मीडिया काफी ज्यादा ट्रेंड में है। सो इट्स लाइक एक क्रिकेटर की लाइफ में भी ना सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। बी रणजी लेवल प्लेयर, स्टेट लेवल प्लेयर, और समवन फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। So how do you deal with attention or criticism online? क्योंकि आजकल आप कुछ भी करोगे, it is online, like it is available on social media। आपको criticism भी मिलता है, अगर आप अच्छा कर रहे हो आपको praise भी मिलता है, appreciation भी मिलती है। तो how you deal all these things? तो बेसिकली होता है, एवरी टाइम होता है, हर क्रिकेटर के बीच में 2-3 मैच खराब जाते हैं, सबके साथ होता है ये। तो उस समय पीपल विल बी लाइक क्या कर रहा है, लोग ऐसे देखते हैं जैसे कि हमने कोई क्राइम कर दिया। सबको उतना समझ नहीं होती क्रिकेट की, तो पीपल आर लाइक ये ऐसा देखते हैं हमने जैसे कोई क्राइम ही कर दिया है। एंड हर जगह इन द मे बी इन द ऑनलाइन मीडिया दिस एंड दैट, मतलब बोलते हैं कि have been continuously getting out this and that, ऐसा बोलते रहते हैं कि कंसिस्टेंसी नहीं है, ये नहीं है, तेरा वो खराब है, तेरा ये खराब है, बोलते रहते हैं। बट दैट डजंट उसमें से मैं ट्राई करता हूँ कि कुछ पॉजिटिव लूँ, कि अगर मेरे लिए कुछ चीज़ काम आ रही है तो, और बाकी जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको निकाल देता हूँ, स्ट्रेट अवे मेरे माइंड से निकाल देता हूँ। बिकॉज यही लोग हैं वो बाद में चल के जब मैंने 100 किया तो यही लोग मुझे प्रेज भी करने वाले। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट द मीडिया प्रेशर या ऑनलाइन ये जो क्रिटिसाइज करते हैं। तो सी इट हैपेंस, जो ऑनलाइन मीडियाज है ये वो है, हम हर प्लेयर के साथ ये होता है कि कभी 2-3 मैच कोई खराब खेलता है या परफॉर्मेंस नहीं हो पाता है, तो पीपल विल से कि इसका ये खराब है, उसका वो खराब है, ही इज नॉट डूइंग। बट आई जस्ट ट्राई टू टेक सम पॉजिटिव्स, अगर उसमें से मुझे कुछ सीखने मिल रहा है तो, और जो नेगेटिव चीज है वो मैं अपने दिमाग से हटा देता हूँ, बिकॉज आई नो दिस थिंग इज नॉट गोइंग टू हेल्प मी। एंड यही लोग बाद में दे विल प्रेज अस व्हेन वी परफॉर्म वेल। तो इट्स अ पार्ट ऑफ एवरी क्रिकेटर्स लाइफ, ये सब लोग फेस करते हैं। एंड ऐसे टाइम पे खुद को कैसे स्ट्रॉन्ग रखना है और खुद को कम बैक कैसे करना है नेक्स्ट मैच में, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो या आई ट्राई टू बी मेंटली टफ। मैं वो चीज़ें याद करता हूँ जिससे मैं जो मैं अच्छे फॉर्म में था तब मैं क्या रूटीन फॉलो कर रहा था, वो चीज़ें खाली याद रखने की कोशिश करता हूँ। तो बेसिकली क्रिटिसिज्म पे ध्यान ही नहीं देना चाहिए। यू शुड बैक योर गेम एंड लाइक गिव द रिप्लाईज ऑन द ग्राउंड इटसेल्फ।
या क्रिटिसिज्म में कुछ चीजें कभी कभी कोई टेक्निकली बताता है, कुछ मेंटली बताता है, तो दैट इज वर्थ नोटिंग, बट अपार्ट फ्रॉम दैट नेगेटिव एस्पेक्ट्स doesn't hold a place in my in my journey. Okay, and it's moving forward. Like how do you adapt your game across formats? T20 हो गया, लिस्टे हो गया, फर्स्ट क्लास हो गया. So I usually try to adapt by 1 day before preparations. So for example, now I know that मेरा 3 days बाद T20 गेम है, तो I just adapt to the situation कि अभी मुझे T20 के हिसाब से प्रैक्टिस करना है. For me T20 is not swinging every ball, हर बॉल पे घुमाना T20 नहीं होता मेरे लिए T20 is just extension of shots. मतलब जो शॉट्स हम टेस्ट मैच में या वनडे में मारते हैं उसी का एक्सटेंशन होता है. एंड इट्स ऑल ऑल अबाउट माइंड गेम. मतलब आप जरूरी नहीं है कि आपको बहुत दिन उसके लिए प्रैक्टिस करना है ट्रांजिशन में, टेस्ट से T20 ट्रांजिशन में. आज इंडियन टीम भी खेलती है तो टेस्ट से T20 के बीच में ब्रेक हार्डली 3-4 डेज मिलता है, तो उस हम्म. बीच में ज्यादा प्रैक्टिस तो नहीं हो सकती अपार्ट फ्रॉम 1-2 डेज ऑफ प्रैक्टिस. तो उस टाइम पे माइंडसेट ट्रांजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है. एज आई टोल्ड, एक्सटेंशन ऑफ शॉट्स, मतलब जो सीधे बैट से हम कवर ड्राइव मारते हैं टेस्ट मैच में, उसी को खाली हम्म. एक्सटेंड करके कवर के ऊपर से मारना होता है. थोड़ा बोलने में इजी है, बट यही चीजें मेंटली और जो 1-2 दिन प्रैक्टिस करने को मिलता है उससे यही सब चीजें इम्प्लीमेंट करनी होती है. ओके, एंड लाइक मेरा नेक्स्ट सवाल वही था इंजरीज रिलेटेड और सेटबैक से रिलेटेड. सो हाउ इज योर इंजरी? सुबह मुझे पता चला यू गॉट इंजर्ड एंड यू हैव बीन टू योर पीसीओ. कैसा है एंकल? नहीं, ये तो छोटी मोटी इंजरीज आती रहती है. ये हम लोग कभी कभी ओवर ट्रेन कर जाते हैं. जैसे मेरे को 40 मिनट्स का दिया था कि मेरे को 40 मिनट्स में इतना कंप्लीट करना है ट्रेनिंग में, तो मैंने थोड़ा जोश जोश में आके थोड़ा ज्यादा कर लिया. हो जाता है, छोटे मोटे पुल्स आ जाते हैं, बट नथिंग मेजर. ओके, एंड सो इसी से मेरा अगला सवाल था कि हाउ डू यू डील विद सेटबैक्स, बी इट इंजरी और सिलेक्शन प्रेशर? हाँ, सो सिलेक्शन प्रेशर्स मैं बचपन में मेरे साथ बहुत बार हुआ था कि अंडर 14 में रन करने के बाद नहीं लिया, अंडर 16 में ये वो. तो वो टाइम पे आई यूज्ड टू बी, मैं डिप्रेस्ड हो जाता था. घर पे बोलते थे कि क्या है, बट ओवर द टाइम मेरे को समझ में आया कि वो अपने हाथ में नहीं है. वॉट यू कैन डू इज योर ओन प्रोसेस एंड इन योर परफॉर्मेंस. मतलब अगर मैंने अच्छा परफॉर्म किया है, अगर मैं सेटिस्फाइड हूँ मेरे परफॉर्मेंस से, देन मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मुझे सिलेक्शन मेरा होगा कि नहीं होगा. अगर मैं यू नो अगर मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, अगर मैं बाकी लोग से एक्स्ट्राऑर्डिनरी हूँ, तो आई एम वेरी श्योर कि परफॉर्मेंस होना ही है. मैं अब तक जो भी क्रिकेट खेला हूँ सब मेरे बेसिस पे ही खेला हूँ, तो आई नो आगे भी जो भी मुझे खेलना है मैं मेरे बेसिस पे ही खेलूंगा. अगर मैं परफॉर्म करूंगा तो मैं खेलूंगा, अगर मैं नहीं परफॉर्म करूंगा तो आई हैव टू सिट आउट, एंड दैट्स पार्ट ऑफ गेम. तो सिलेक्शन प्रेशर में लास्ट कुछ 4-5 साल से सोचना छोड़ दिया है. मेरा है बस जाके मेरे को मैंने जो प्रोसेस किया है, मैंने जो प्रैक्टिस किया है, उसी को मैं जाके खाली इम्प्लीमेंट करना देखता हूँ. इंटरेस्टिंग. एंड लाइक एंड देन मेरा वो सवाल है तो मैं हर किसी से पूछना चाहता हूँ, और जो भी प्लेयर हो या फिर कोई भी बिजनेस कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, उसका उनके गोल्स तो होते हैं. सो हाउ आर यू प्रिपेयरिंग फॉर दिस सीजन, अपकमिंग सीजन? कुछ गोल्स हैं. So I was asking you, like, is there any goals for the upcoming season? Are you aiming for an IPL contract or India a call up soon? How's the preparation going on for this season? तो टू बी ऑनेस्ट, एज आई टोल्ड कि वो IPL कॉन्ट्रैक्ट को भी नेक्स्ट ऑक्शन के पहले नथिंग कैन बी डन. सो आई एम वेटिंग फॉर द अनदर सीजन टू कम विच स्टार्ट्स इन September-October. तो मैं उसके लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और मैं कुछ गोल नहीं रखना चाहता हूँ कि मुझे इस साल IPL खेलना है, इंडिया ही खेलना है. मैं खाली मेरा प्रोसेस राइट करना चाहता हूँ, मैं मेरा इम्प्लीमेंटेशन राइट करना चाहता हूँ व्हेन आई गेट अ चांस टू प्ले अगेन इन द डोमेस्टिक. क्योंकि मेरे साथ ये हुआ है, जब मैं गोल्स बनाता हूँ तो मैं ओवर थिंक करता हूँ, और फिर खाली गोल्स की तरफ देखता हूँ, प्रोसेस की तरफ नहीं देख पाता. तो आई जस्ट वांट टू डू माई प्रोसेस. जो भी मेरा रहेगा IPL, इंडिया ए, जो भी मेरा एक्सपेक्टेशंस है वो खुद ही ऑन द वे आएंगे. इफ आई थिंक अ लॉट अबाउट इट तो फिर वो मुझे मिलता नहीं है. Interesting, and thanks for answering beautifully. Moving forward to the best part of any talk show or podcast, the rapid fire round, I guess. So are you ready? We'll ask few questions and you have to answer it in very quick sessions. So you have like it for a day. विराट कोहली.
Interesting. Finally, an IPL trophy for him as well. ठीक है. Batting or fielding, what keeps you more adrenaline? Batting. Favorite cheat meal after a tough match? Melting pastry, brownie pastry. Interesting. Sounds delicious. A teammate who is always cracking jokes in the dressing room. Uh, Shardush? this is very tough. No. Tanush Patian. Oh, okay. One word your friends would use to describe you off the field. Off the field. Mr. Businessman. Oh, interesting. Most used application on your mobile phone. It's Instagram maybe. A match you wish you could play again just to relive that moment. It was the Ranji Trophy final. Interesting. One dream destination you would like to travel for a cricket tour. Sorry? England. Okay. England, UK. Got you. At last, describe your batting style in just 3 words. What? Describe your batting style, your batting in 3 words. Like 3 words, as in like 3 words: elegant, classy, something like that. For example, if I had to describe my batting, I would call okay. it slow, steady. Acha. So mine is elegant, patience, and mindful. Okay, one superstition or ritual you follow before going out to bat. I used to before I had match t-shirts, like ये t-shirt पहनूंगा तो runs होगा. Okay. What dream wicket you would love to score a century on? Let me give you options. Wankhede, Lords or MCG? Wankhede, obviously. Oh, interesting. Lords पे और MCG पे नहीं. So I was asking कि वानखेड़े ही क्यों? Lords या Mellon cricket ground नहीं? Because Wankhede is something where I've born playing cricket over there. You know, Wankhede में खेलना अपनी बड़ी बात है, and उधर century बनाना तो it's a very big thing. क्योंकि Lords and वो ठीक है, I've never played there, but Wankhede is something which is my home, and अपने घर पे कुछ भी special ही होता है. Okay, interesting. It was lovely talking to you. Answered brilliantly, and it was like pleasure having you on this chat, on this podcast. We have learned like more about cricket, especially know better about you. Thanks for tuning us. It was pleasure talking to you. Thank you. Thank you. Thanks a lot for watching. For more such videos and podcasts, keep watching the C Nation podcast.